这个对，这是地方。Thank you, girls. Belief is the power that leads from darkness to light and makes the impossible possible. Good morning to one and all present here. Respected our Chief Guest, Shri Hitesh Lakhanpal, ASP Kangra, Managing Director, Shri Gandhar Singh Pathania, Executive Director, Dr. Balwant Singh Pathania, Principal, Dr. Parveen Kumar Sharma, and all other faculty members. I, Aditi Padyal, feel honored to welcome you all to this grand occasion, the Annual Sports Meet 2025 organized by the Student Council Association. Now, I request Managing Director Sir and ED Sir to present the flower pot to our Chief Guest. Please जोरदार तालियां बजाते रहें. Now I would like to request Principal Sir and Adjunct Sir to present the flower pot to MD Sir and ED Sir. I would like to request SK President Mr. Vilas to present flower pot to our Principal. Principal Sir. Now I would like to request SK President to present flower pot to our Principal Sir.
I invite Ms. Saloni to introduce our esteemed chief guest, whose presence today adds immense value to our event. Good morning, everyone. It gives me immense pleasure to welcome you all to this year's annual sports meet to unleash the champion within, organized by SE. We are gathered here to celebrate not only the spirit of sportsmanship, but also the hard work and dedication of all the participants. It is an honor for us to have with us today a distinguished individual, a true leader in our community, and someone who has been a constant source of inspiration, Mr. Hitesh Lakhanpal, Additional Superintendent of Police, who has graciously accepted our invitation to be the chief guest for today's event. Sir, you are born on 28 July 1985. Sir, your father is a retired civil servant and your mother is a retired principal. Sir, you are a HP Police Service Officer of 2010 batch. Sir, you are a merit holder in 12th standard in medical stream. You are a topper of Himachal Pradesh University and secured 7th rank in HP in Bachelor's of Arts. You did Masters in Public Administration from Indira Gandhi National Open University. Sir, you are current pursuing Masters in Gender and Developmental Studies from Indira Gandhi National Open University. Sir, you also received award of Best Bureaucrat in 2018 from Focus Himachal magazine and newspaper. So your last posting was a secretary in HP Ex-Servicemen Corporation, Hamirpur. Sir, you are a cybercrime expert and pro-public officer. Sir, you are a great motivational speaker. Your words and positive thinking motivates others. On the behalf of Dronacharya family, I welcome you, sir. I request everyone to please join me in welcoming our esteemed chief guest with a huge round of applause. Thank you. Hello. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बहुत गर्मी है, मैं आपका कुछ सोच के आया था, पर अपने भाषण को मैं या बात को मैं संक्षिप्त में और इम्पोर्टेंस वाली बात आपसे करूंगा। मेरे साथ सबसे पहले बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आई एम हैप्पी कि मैं आपके पास आया और मैं धन्यवाद करना चाहूँ आपके एडमिनिस्ट्रेशन को, द्रोणाचार्य कॉलेज के सारे डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब, फैकल्टी और स्टूडेंट काउंसिल को, जिन्होंने यहाँ पे आप सबके लिए एक भव्य आयोजन किया है। और आशा करता हूँ कि आने वाले ये जितने भी दिन का टूर्नामेंट अभी आपने रखा है, इसको आप भरपूर पार्टिसिपेट करेंगे और एंजॉय करेंगे। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे आसपास चल रही हैं, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लाइफ है क्या है, लाइफ के गोल्स क्या हैं। मैं छोटे बच्चों के स्कूल में जब जाते हैं तो हम बात करते हैं कि हम क्या हैं। हम इमेजिन करो, हम क्या हैं? बस हैं। क्या है हम? बस के आगे अगर बोर्ड नहीं लगा होगा तो बस पहुंचेगी अपने डेस्टिनेशन पे। आप बैठोगे उस बस में। अभी एक बस आती है और खाली कोई बोर्ड नहीं लगा, आप बैठोगे? नहीं बैठोगे। तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, हमें अपने लाइफ में क्या बनाना है? गोल, एम सबका होना चाहिए। बड़ा, छोटा, अच्छा, बुरा, वो दूसरे डिसाइड करते हैं। आपको जो अच्छा लगता है वो आपने करना है। मेरा बड़ा शुरू से ही बड़ा क्लियर था कि मुझे इन सर्विसेज में आना है। मेरे फादर भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे, तो मुझे बचपन से क्लियर था कि मैंने यही बनना है। मुझे लगता था यही सब कुछ है, जो कि अब मैं रियलाइज करता हूं ये सब कुछ नहीं है, पर मुझे उस वक्त लगता था यही सब कुछ है। जो घर में देखा, बहुत सारे स्किल्स हैं जिसके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अपनी जिंदगी में? क्या करेंगे? एक गोल निर्धारित करेंगे। सबने सोच रखा है? कोई है ऐसा भाई बहन जिसने नहीं सोचा है कि देखेंगे मेरा दोस्त क्या करता है, पड़ोसी क्या करता है, उसके बाद सोचेंगे? बहुत सारे लोग होंगे ऐसे।
सबने सोच रखा है अपनी जिंदगी का गोल? आवाज नहीं आ रही, देखो आपकी उतनी आवाज नहीं आ रही जितनी जय हिंद में आई थी। हमारे देश में, हमारा देश आगे बढ़ रहा है ना। हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है। जब देश तरक्की करता है तो वो तरक्की कहां तक पहुंचती है? अल्टीमेटली आके हम सब तक। रोड बन रहा है यहाँ पे, कौन सा रोड बन रहा है? 4 लेन। कभी सोचा था हमने कि 4 लेन क्रॉस होगा यहां से? सोचा था आप लोगों ने? तो तरक्की ऐसे पहुंचती है। अब वो सारा चीजें हो रही हैं और हम क्या कर रहे हैं? हम पढ़ाई कर नहीं रहे। हम कहां बिजी हैं? कौन सी बीमारी हमें घेरा हुआ है? फोन बीमारी है? बताओ आप, फोन बीमारी है कि हम बीमारी हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे अंदर ये है कि हम असली जड़ तक नहीं पहुंचते। हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानते नहीं है, हम दूसरी चीज को प्रॉब्लम मानते हैं। हम एक्सक्यूज देते ना एक्सक्यूज। हम 2 मिनट में अगर आप गलत कर रहे हो, आपके घर में किसी ने पकड़ लिया, तो आप एकदम बहाना मार दोगे। छोटे होते आपने डिस्कवर कर लिया है झूठ सबसे बड़ा जबरदस्त चीज है। जब घर में आके हर चीज सच बताते थे तो पापा से क्या पड़ता था? फिर आपको मालूम हुआ कि हर चीज सच नहीं बतानी चाहिए। क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना सीखा फिर हमने? और झूठ बोलते हम क्या बन गए अब? पहले आप होता ना कि पहले आप स्टार्ट करते हो, खेलना स्टार्ट करोगे, बैट्समैन आता है, बॉलिंग आती है, घटिया बॉल करोगे, घटिया बैटिंग करोगे, धीरे धीरे हम क्या बनते जाते हैं? क्या बनते जाते हैं? एक्सपर्ट। क्या करते हैं जी आप? मैं झूठ एक्सपर्ट बोलते हैं ऐसा। ऐसे ऐसे हमारी जर्नी बढ़ती जाती है और हम गलत की तरफ चलते जाते हैं। मोबाइल प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? हमारा जो ध्यान है, हमारी जो सोच है। मोबाइल से, इंटरनेट से आप अच्छी चीजें भी डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, और मोबाइल इंटरनेट से आप बेकार की चीजें भी देख सकते हो। अपना पूरा दिन रीलें देख देख के, स्क्रॉल कर करके हमारी इस उंगली में भी क्या हो गई है? ये उंगली इतना यूज नहीं होती थी पहले। अब हम स्क्रॉल कर करके, रीले बना बना के, अलग बना के। तो रील बनाना बुरी बात नहीं है। मैं एक मंडी के किसी स्कूल में गया, छोटा सा बच्चा था वहां पे, 7th क्लास का, बड़ा इंटीरियर का स्कूल था। उसको पूछा मैंने कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे? उसने कहा सर मैं यूट्यूबर बनूंगा। क्या बनूंगा? यूट्यूबर बनना बुरी बात नहीं है, पर एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए, जो मैंने आपको शुरू में बोला। लाइफ बहुत अच्छी है जब हम लक्ष्यहीन होकर चलते हैं। हम देखते हैं कि अब मेरी बीएड होगी जी, अब क्या करना जी? अगला नौकरी मिल जाएगी आपको निकलते ही यहां से, फिर क्या करेंगे? पीछे भाई लोग बैठे हैं मेरे, क्या करोगे? बीबीए बीसीए करके नौकरी मिल जाएगी, पर चिट्टा गैंग में नौकरी जल्दी मिल जाएगी। बढ़िया बिजनेस है ना? तो जॉब ओरिएंटेड चीजें, स्किल को डेवलप करने वाली चीजें हमें सीखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? लाइफ का गोल निर्धारित करना है। अब मान लिया आप पहुंच गए वहां पे जाके, जो आपने सोचा था, अब उसके बाद खत्म। मैं 24 इयर्स में पुलिस सर्विसेज में आ गया, अब क्या है नेक्स्ट? खत्म कर दूं? हो गया, बस बन गया। अब क्या करना है? हाँ जी, प्रमोशन। अच्छा, प्रमोशन का वेट करेंगे अब बैठ के। लाइफ किसी के लिए इजी नहीं है। आपको लगता होगा कि मेरे मजे हैं, लग रहा है? लग रहा है ना? जब हम बैठते तब भी सोचते थे सामने वाले के, यार ये है मजे, तो ये है मजे। किसी के नहीं है, मजे आपकी सोच में है। अगर आपने एंजॉय करना है तो पैसे से मजे नहीं आएंगे। हमें लगता था कि बड़ा घर होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो अंबानी जी इस दुनिया के सबसे क्या व्यक्ति होने थे? है ऐसा? आप बताएंगे ऐसा है? सबसे खुश व्यक्ति कौन है? सबसे खुश व्यक्ति वो है जो खुश रहना जानता है, जो सेटिस्फाइड है अपने काम से। तो हमारे अगले जो ट्विन गोल्स होने चाहिए, क्या होने चाहिए? पूरी लाइफ भर चलेंगे आपके साथ। क्या? हैप्पीनेस, बोलो, और सेटिस्फैक्शन। ये 2 चीजें हैं। अब आते हैं आगे, बढ़ गए हम इस चीजों के ऊपर। अब क्या बच्चों आगे? मैंने बोला मैं बन गया, 24 इयर्स का बन गया,
सीरियस हो गया 10th के बाद, पढ़ाई शुरू कर दी। जो पढ़ते नहीं है उनकी घर में भी सेवा होती है, होती सेवा, मिलता है मेवा। भाई लोग जो बैठे इधर, कम हो गई है सेवा। सेवा क्या हो गई है? माँ बाप मारते हैं, अब नहीं मारते। अब जब मारते नहीं तो हमारे अंदर डिसिप्लिन भी नहीं है, हम बात भी नहीं सुनते उनकी, हमें लगता है इसी बोलते रहते हैं। वो जो सबसे फेवरेट जब हम छोटे होते थे, पापा मम्मी होते थे, वो अब आपकी स्टेज पे पहुंच के घर वाले हो गए। अरे मेरे घर वाले ऐसा बोलते हैं, अरे मेरे घर वाले, बापू हो गया, माँ होगी, दुखी करके रखा है, धुआं दिया हुआ यार। किसने? बापू ने। क्या चाहते हैं फादर आपसे, क्या चाहते हैं मदर आपसे? जब आप पैदा हुए थे सबसे ज्यादा खुश कौन हुआ था? कौन हुआ था? पेरेंट्स। और आज सबसे ज्यादा दुखी कौन है आपसे? इसलिए आप इस धरती पे आए कि आप बड़े हो कि अपने माँ बाप को धुआं दो? नहीं ना। तो बच्चों, ये अपॉर्चुनिटी है, हमने ये ग्रास्प करनी है। लकीली हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां पे संस्कृति इतनी स्ट्रांग है हमारी, है ना? संस्कृति हमारी स्ट्रांग। अच्छा, आप कोई बच्चा बताएगा मुझे कि एक ऐसी कार है जो बिना पेट्रोल के चलती है, बिना डीजल के चलती है, बिना सोलर पैनल के चलती है, बिना इलेक्ट्रिसिटी चार्ज से चलती है? कौन सी कार है वो? बिना हाइड्रोजन के चलती है? हाँ जी, साइकिल। नहीं, कार बोला मैंने। हाँ जी, जिंदगी की गाड़ी। सबसे इंपॉर्टेंट शब्द बोलने जा रहा हूं मैं। ऐसी कार जो बिना इन सब चीजों के चलती, वो है संस्कार। याद रखना बच्चों, में मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको समझा रहा था एक दिन, क्योंकि छोटे बच्चों को आपको समझाना आसान है, एग्जाम्पल देना भी समझाना, छोटे बच्चों को समझाना मुश्किल है। मैंने कहा लाइफ में गुड हैबिट्स जो हैं, अच्छी आदतें जो है ना, वो एडिशन की तरह काम करती है। क्या काम करती है? सिंपल, ऐड करती है। बुरी आदतें क्या करती हैं? सब्सट्रैक्शन। अब आप खुद सोचो कि आपने कहां जाना है, क्या करना है मुझे। ये दुनिया, अनफॉर्चुनेटली आप ऐसे टाइम में पैदा हुए हो कि दुनिया बहुत नेगेटिव, पॉजिटिव है दुनिया। पहले अपने घर से बाहर निकलो, माँ बाप के अलावा बाहर निकल गए, कौन आते हैं? आस पड़ोस के। क्या बोलते हैं उनको? रिश्तेदार। रिश्तेदार। रिश्तेदार जब आप फर्स्ट आओगे कभी फोन नहीं करेंगे, जब फेल हो गए तो पहला फोन आएगा, कितने नंबर है मनु वाले? करते सबके ऐसी होते। रिश्तेदार के बाद आगे चले जाओ, आंडी गवांडी। अगर आप गरीबी में जी रहे हो, दुखी हो, आपके पास पैसा नहीं है, आप दीनहीन हो, तो वो क्या होंगे? क्या होंगे? वो स्वाद लेंगे और खुश होंगे, आया मजा से। और जैसे ही आपने ड्रीम 11 में लॉटरी जीत रही 1 करोड़ की, क्या होगा? वही लड़का मेरे साथ रहता है, मेरा पड़ोसी है। तो सक्सेस के बहुत सारे क्रेडिट और फेलियर का कोई नहीं होता। कौन होता आपके साथ हमेशा? कौन खड़ा है आपके साथ? पेरेंट्स। तो जब आप इस धरती पे आए हो तो उनको खुश रखो, उनके लिए कुछ करो। सोचो कि मैं आज आया हूं, मैंने क्या किया, क्या कमाया मैंने। पूरा दिन भर हम सब लोग क्या बोलते रहते हैं? फोन आएगा, आपको भी फोन आएगा, आपने सुन लिया एक शब्द, क्या बोलते हैं? अरे बिजी आऊं। क्या बोलते हैं? बिजी 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 बिजी। क्या बिजी? क्या करते हो आप? न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहे हो? कभी मुझे लगता नहीं एपीजे अब्दुल कलाम ने भी ऐसा किया होगा। उनकी सच्ची घटना बताऊं मैं आपको एक। जब वो राष्ट्रपति थे, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। जब वो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बोला, जो एक सीनियर आईएएस अधिकारी था, कि मेरे को शाम को ये प्रेजेंटेशन दो। अब वो उन्होंने आगे फोन किया, बोले सर जो प्रेजेंटेशन बनाने वाला वो तो छुट्टी गया है। अब वो डरे बोलने को, क्योंकि राष्ट्रपति को कैसे बोलेंगे जाके, पर चलो बोलना पड़ना था क्योंकि उन्होंने आदेश दिया था। जाके राष्ट्रपति के पास गए, एपीजे अब्दुल कलाम जी के पास गए और क्या बोला कि सर जो प्रेजेंटेशन बनाता है ना वो छुट्टी पे। ये बात कर रहा हूं मैं 2000, कब थे वो राष्ट्रपति? अब्दुल कलाम जी कब थे राष्ट्रपति? 1950 में। हाँ जी, कईयों को पता भी है कि हैं कौन है वो। जयकारा लगा दो माता रानी का।
जोर से बोलो, बस, वेरी गुड। अब ये बंदे जयकारा ही लगाएंगे पूरी। तो अब्दुल कलाम जी 2005 के आसपास जो थे राष्ट्रपति थे। उस वक्त पीपीटी बनाना, ये सब चीजें डिफिकल्ट टास्क था। आज तो हमारे लिए चुटकियों का काम है। तो क्या बोला वो, गए उन्होंने बोला कि सर वो जो बनाता ना जी वो छुट्टी पे है। डरते डरते बोला, तो बोला कि क्यों, आपको नहीं आती बनाने? नहीं सर मेरे को तो नहीं आती, मेरे को बस रिटायरमेंट अगले साल जी। आप क्या सीखना? मिलोगे मुझे 5 बजे फलाने दफ्तर में।